session. It would be a paper discussion session. I would be asking you question. We will be discussing mutually, right? If you will be having any doubt, you can ask me simultaneously. I will be helping you to solve your queries, solve your doubts, and I will be again revising the way how we need to give the exam, how we need to answer the question, and we will be starting up with the section C. I will be having a word with you all on section C. Section C की हम बात करेंगे और after completion of section C we will be moving to section B, and after the completion of section B at the end we will be going with section A. The video of the same will be shared with you all by the end of this session so that you can go through the session as well again if you have any doubt in it. बच्चे, I want you to answer the questions जो हम डिस्कस करते जाएंगे. If there would be any problem, I will be there to helping you out with it, right? So अगर हम सेक्शन सी की बात करें बच्चे, तो सबसे पहले सेक्शन सी में पोम से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है जो कि 4 नंबर का होता है, right? 4 questions are there. It is mandatory to perform all the 4 questions and each question from this extract consists of 1 mark each, right? इज इट क्लियर? सबको पता है मार्क्स का पैटर्न क्या है? मार्क्स का पैटर्न भी हम साथ साथ में डिस्कस करते जाएंगे, राइट? ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सट्रैक्ट. द एक्सट्रैक्ट सेज वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट अडल्ट्स वर नॉट all they seem to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? तो सबसे पहले बच्चे, I would like to ask you, ये एक्सट्रैक्ट कौन सी पोइम से लिया गया है और इसके पोइट कौन है? Who is the poet for childhood? Any question? Any answer? Marcus Nathan. Marcus Nathan. Very good. Marcus Nathan is the poet and the poem is Childhood. Okay. Second question from this extract is, what does the poet experience about the adult? Marcus Nathan ने as a poet इस poem में adult के बारे में क्या experience किया है? कौन बता सकता है? So that the adults show love but they practice only hatred and anger. वेरी गुड. इसको अगर हम हिंदी में डिस्कस करें तो मार्कस नेथन ने ये एक्सपीरियंस किया है कि जितने भी अडल्ट हैं वो लव तो प्रीच करते हैं, वो कहते हैं कि वी मस्ट लिव विद लव एंड हार्मनी, बट इन देयर एक्शंस इट इज नॉट सीन इजीली. जो उनके एक्शंस हैं वो उसमें लव नहीं देखा जाता है, एंड दे आर नॉट लविंग एंड केयरिंग इन एक्चुअल, इन रियलिटी. गॉट इट बच्चे? सक्षम, लक्ष्य, बबलीन, ओपन द कैमरा बच्चे. आई वॉन्ट योर बैक रिस्पॉन्सेज टू. बच्चे, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? जो अडल्ट्स हैं वो कहते हैं कि वी मस्ट लिव विद लव. एवरी टाइम दे प्रीच इज लव, बट इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन देयर एक्शंस. वो खुद लविंग और केयरिंग नहीं है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, व्हेन डज द पोएट feels having virtually lost her childhood? पोएट को कब लगता है कि उसने अपना जो चाइल्डहुड है वो लूज कर दिया? एज पर दी चाइल्डहुड, जब पोएट 12 साल का हुआ, ठीक है, जब उसके अंदर इंडिविजुअलिटी आई तो उसको लगा कि नाउ आई हैव रियलाइज्ड व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 12, व्हेन आई वाज इंडिविजुअल, I got a sense of individuality that I have lost my childhood. कब? जब वो 12 years का था और उसके अंदर individuality आई. ओके बच्चे? Yes sir. Okay. Explain but did not act so lovingly. ये लाइन किसके लिए कही गई है? अगर इसको एक्सप्लेन करना हो कैसे करेंगे? but did not act so lovingly. बच्चे, ये लाइंस अडल्ट्स के लिए कही गई हैं क्योंकि अडल्ट जो हैं वो प्रिटेंड करते हैं. दे ऑलवेज प्रिटेंडिंग दैट दे आर वेरी लविंग, दैट दे always preach love, that they always show respect for others, but
unfortunate part is that they are not loving. They only speak about love, they only pretend it, but in their action it is not being easily seen. उनके जो actions हैं उनमें प्यार कहीं पे भी दिखाई नहीं देता है. तो बच्चे इस एक्सट्रैक्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर. No, sir. Shall we move ahead? आगे बढ़े. अगर कोई प्रॉब्लम है इस पोइम में, यू कैन आस्क मी. बच्चे, I want responses from your side. There are only 8 No, students, 7 to 8 students. I really want this session to be very interactive with you all. We have started this session with 7 students, right? So I want it to be very attractive. If you have some doubts, you have a very precious time to ask about your doubts to me right now. बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है? No, sir. Okay. नो सर. मूविंग टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम पोम्स. अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करें, देन यू विल बी गेटिंग 3 क्वेश्चंस. आउट ऑफ 3 यू नीड टू आंसर ओनली 2. ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे. 3 क्वेश्चन में से आपने सिर्फ 2 जवाबों का सवाल देना है. ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द हॉर्नबिल्स, राइट? टेल ऑफ मेलिसिटी कैन बी इंक्लूडेड फ्रॉम स्नैपशॉट. ठीक है, एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 3 नंबर का है. तो टोटल वेटेज ऑफ दिस पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 इज 6, राइट? तो हमारी पोम कितने की है? 4 नंबर का एक्सट्रैक्ट, 6 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप, 10 नंबर की. गॉट इट? सो मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन सेज द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट. ध्यान से सुनिए. द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट. What did this laugh indicates? पहले तो मुझे बताओ ये कौन सी पोइम का है? Sir, photograph. वेरी गुड. फोटोग्राफ की पोइटेस कौन है? शर्लेट ऑल्सन. 82. शर्लेट लॉल्सन. एक्सीलेंट. तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? पोइट की जो मदर है वो स्नैपशॉट. स्नैपशॉट का मतलब होता है फोटोग्राफ. फोटोग्राफ को देख के क्यों हंस रही थी? और ये लाफ जो है ये क्या इंडिकेट करता है? कौन बताएगा? तो वो अपना जो उसने जब वो सी हॉलीडे में बीच में गई थी तो वो अपनी फोटो देख के हंस रही थी कि जो उसने अपने आप को ड्रेसअप किया था उस टाइम पे. वेरी गुड. और ये लाफ क्या इंडिकेट करता है बच्चे? सर, एंजॉय और सेंस ऑफ ह्यूमर. ओके. बेसिकली जो मदर है वो स्नैपशॉट में जब अपनी बचपन की फोटो देखती हैं जिसमें उसकी 2 कजन्स हैं, एक बेली और बेटी, और उन्होंने बीच ड्रेस पहना होता है, उसको देख के वो हंस रही होती है. ये लाफ इंडिकेट करता है कि शी हैज एंजॉयड रिमेंबरिंग हर चाइल्डहुड डेज, कि दोज वर द डेज व्हेन शी वाज स्ट्रेस फ्री, व्हेन शी वाज हैविंग नो टेंशंस एंड शी वाज वे अवे फ्रॉम द वरीज ऑफ लाइफ. गॉट इट? वो अपना चाइल्डहुड याद करती है जब उसे किसी भी चीज की टेंशन नहीं थी, जब वो यंग थी, जब वो अपना टाइम एंजॉय करती थी बिना किसी वरीज ऑफ लाइफ के. क्लियर है बच्चे सबको? यस सर. ओके, वेरी गुड. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट डज द फ्रेज हर बैरड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन्स. पहले तो मुझे बताओ बच्चे ये कौन सी पोम से लिया गया है और इसका पोएट कौन है? बैरल्ड फेस आइडेंटिटी मास्क. लबनम टॉप. वेरी गुड. इट इज फ्रॉम द लबनम टॉप. ये किसने आंसर दिया? ठीक आंसर है. वेरी नाइस. और हु इज द पोएट? पोएट कौन है बच्चे लबनम टॉप का? बच्चे लबनम टॉप का पोइट है टेड ह्यूग्स. ओके ओके. अब मुझे बताओ हर बैरड फेस आइडेंटिटी मास्क का मतलब क्या है? डू यू नो और शैल वी डिस्कस? शैल आई टेल? बी ओपन. ओके बेटे, अगर मैं आपको पोइम पे लेके जाऊं तो पोम में कौन सी सीजन की बात हो रही है? ऑटम की. ऑटम सीजन क्या होता है कि ऑटम सीजन एक ऐसा सीजन होता है जब पत्ते जो हैं वो येलो टर्न हो जाते हैं
और येलो टर्न होने के बाद पत्ते जो हैं वो गिर जाते हैं। बेसिकली ऑटम सीजन को हम हिंदी में पतझड़ का सीजन कहते हैं, राइट। पत्ते येलो कलर के हैं। जो गोल्ड फिंच है उसकी पूरी बॉडी जो है वो येलो कलर की है। जब गोल्ड फिंच पत्तों के पीछे छुपती है तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, मगर गोल्ड फिंच को उसके फेस से रिकॉग्नाइज किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि उसके फेस पे ब्लैक स्ट्रिप्स लगी। और ये जो इसके फेस पे ब्लैक स्ट्रिप्स है इसे हर बैरल फेस आइडेंटिटी मास्क कहा जाता है, बिकॉज शी इज गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय हर face which is full of black strips. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Her black stripped face. ठीक है बच्चे? ओके। इसमें कोई, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम अब? No, sir. Okay. No, sir. Moving to the next question, you need to explain it silences. बताओ कौन सी पोम का ये? Sir, photograph. फोटोग्राफ। क्या मतलब है इट साइलेंसेस का? व्हाट डू यू मीन बाय साइलेंसेस? सर, जब पोएट की मदर की जो फोटोग्राफ गुम गई थी तो पोएट की मदर साइलेंस में आ गई थी, और जो पोएट है वो भी साइलेंस में आ गई थी क्योंकि वो अपनी माँ की खुशी नहीं देख पा रही थी। बच्चे अगर हम बात करें इट साइलेंसेस, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम ए फोटोग्राफ। द नेम ऑफ द पोएटेस इज शर्ले टॉल्सन। तो शर्ले टॉल्सन जब घर जाती है और उसकी मदर डेड हो गई होती है, नाउ शी इज हैविंग नो वन विद हुम शी कैन टॉक। अब उसके पास कोई नहीं है जिससे वो बात कर सकती है। शी हैज नो वन विद हुम शी कैन शेयर हर फीलिंग्स। शी फील्स लोनली, राइट। सो आफ्टर द डेथ ऑफ हर मदर, इसलिए वो कहती है इट साइलेंसेस। अब जो चारों ओर है, देयर इज नो वन विद हुम शी कैन टॉक। गॉट इट बच्चे? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा? अथर्व, लक्ष्य, सक्षम? Yes, sir. ओके। नाउ मूविंग टू दी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम हॉर्नबिल्स। बच्चे हॉर्नबिल्स से जो ये क्वेश्चन आएंगे, ये 5 क्वेश्चन होंगे। 5 में से आपने 3 क्वेश्चन करने हैं और हर एक क्वेश्चन, इंडिविजुअल क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है। तो ये 9 नंबर का क्वेश्चन है, राइट। जब हम 3 मार्क्स क्वेश्चन के लिए लिखते हैं, जो हमारी वर्ड लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए? 50 to 75 वर्ड्स। जब हम 2 मार्क का अटेम्प्ट करते हैं तब भी हमारी जो वर्ड लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए? 50 to 75 वर्ड्स। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग अप विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, why did the grandmother accompany the narrator to his school? What did she do there? ये द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रैंड मदर जो थी वो नरेटर को स्कूल में क्यों अकम्पनी करती थी, क्यों छोड़ने जाती थी, और वो वहां पे क्या करती थी? कौन बताएगा? She would accompany the author to the school and sit inside the temple reciting prayers for the holy scriptures. वेरी गुड, वेरी नाइस। बेसिकली बच्चे क्या था कि जो ग्रैंड मदर थी वो अपने ग्रैंडसन को, कुशवंत सिंह को स्कूल में छोड़ने जाती थी। स्कूल के साथ अटैच एक टेम्पल था। जब तक कुशवंत सिंह पढ़ नहीं लेते थे, यानी जब तक स्कूल क्लोज नहीं हो जाता था, शी यूज्ड टू सिट ओवर देयर, वेट फॉर हर ग्रैंड चाइल्ड, एंड आफ्टर द स्कूल गेट्स ओवर और क्लोज, शी यूज्ड टू stay dog. Very good. She used to take Kushwant Singh along with him back to home, and while coming back to home they used to feed stray dogs with stale chapatis. Okay बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next question. How did the first disaster strike the ship? We are not afraid to die. कौन बताएगा? We are not afraid to die. पहला डिजास्टर कैसे स्ट्राइक हुआ? तो जनवरी जो 4 और 5 को आया था। नहीं, जनवरी 2 को जो आया था।
बच्चे पहला डिजास्टर तो जनवरी 2 में आया था। देखो इस स्टोरी को मैं आपको फिर से समझाता हूँ। क्या है कि जो नरेटर है वो अपनी वाइफ मैरी के साथ, अपने बेटे जॉनथन के साथ और अपनी बेटी सू के साथ एक वॉक में जा रहे हैं। वॉक क्या है? समुद्री यात्रा। ये वॉक कहाँ से शुरू हुआ है? ये वॉक शुरू हुआ यूके से। यूके कौन सी जगह? प्लायमाउथ से। ये केप ऑफ टाउन में पहुंचते हैं। केप ऑफ टाउन में ये 2 क्रू मेंबर को हार करते हैं, ठीक है। एक है लैरी और दूसरा है हर्ब। ये क्यों हार करते हैं? क्योंकि नरेटर को पता होता है कि जब ये इंडियन ओशन में एंटर करेगा, जो कि वर्ल्ड का डेडलीस्ट ओशन है, तो वहां पे इनको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। ये प्लायमाउथ यूके से ऑस्ट्रेलिया जा रहे होते हैं। अब ये केप ऑफ टाउन से निकलते हैं और इंडियन ओशन में एंटर करते हैं। इंडियन ओशन में जब ये एंटर करते हैं तो क्रिसमस बहुत अच्छे से निकलता है, न्यू ईयर बहुत अच्छे से निकलता है। मगर प्रॉब्लम कब होती है? प्रॉब्लम होती है 2 ऑफ जनवरी को, जब वेव्स जो है वो गैंगैंटिक हो जाती हैं। गैंगैंटिक मतलब कि ऊंचे हो जाती हैं, ठीक है। और तेज हवा चलनी शुरू हो जाती है। तेज हवा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग गेल्स, ठीक है। इनको ट्रबल करती है और शाम को एकदम से सन्नाटा हो जाता है। एवरीथिंग स्टॉप्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इवनिंग, ठीक है। एकदम से जो क्लाइमेट है, जो आसमान है, वो ग्रे होना शुरू हो जाता है और एकदम से एक वेव इनकी शिप को हिट करती है, जो कि एक वर्टिकल वेव है, और जो कैप्टन है वो इसको ओवरबोर्ड कर देती है, ठीक है बच्चे। और शिप जो है टूट जाती है पीछे से, डेक से, और शिप के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है। शिप का नाम क्या है? इसका वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई में बच्चे, व्हाट इज द नेम ऑफ द शिप? वेव वॉकर। वेरी गुड, वेव वॉकर। क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. आंसर समझ में आया बच्चे? एनी प्रॉब्लम? यस, नो सर। Okay. Now the next question, why was the narrator disappointed with Darchan? नरेटर जो था वो डार्चन से क्यों डिसअपॉइंटेड था? Who will answer? मैंने इतनी बारी क्लास में दिया है, पेपर में भी आया हुआ है। Sir, because the narrator heard that Darchan जो है वो विजिटर से भरा रहता है ड्यूरिंग द सीजन ऑफ कैलाशपुरा। वेरी गुड। बट जब वो वहां पे पहुंचा तो बड़ा डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि उसको वहां पे कोई भी पिलग्रिम नहीं दिखा, सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। वेरी गुड, दिस इज वन ऑफ द पॉइंट सेगल वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। हाँ जी बोलिए बच्चे। सेकंड थिंग कि उसको दार्चन में सिर्फ खाने के लिए एक ही कैफे मिला, और वो भी बैडली पेंटेड था। वो होर में था बच्चे। हॉर में था वो? हाँ। ओके सर। जो डार्चन में था उसमें एक कैफे था जो कि कैनवास से बना था, जहां पे उसे नोरबू मिलता है, ब्लू कैनवास, राइट। ओके, इसको हम डिस्कस करते हैं कि क्यों नरेटर जो था वो डार्चन में डिसअपॉइंटेड था। फर्स्ट वैलिड पॉइंट गिवन बाय सारांश सहगल। सारांश सहगल टोल्ड के ये उस टाइम पे पहुंच गया था जहां पे पिलग्रिम्स नहीं थे, जब पिलग्रिम्स नहीं थे। ऐसा होता है, ही हैड हर्ड के जो डार्चन है इट इज फुल ऑफ पिलग्रिम्स हु आर देयर फॉर परफॉर्मिंग कोरा, ठीक है, कैलाश माउंटेन का। बट नरेटर जो है वो ऑफ सीजन में पहुंच गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट के नरेटर जब फर्स्ट डे डार्चन में पहुंचता है, द फर्स्ट नाइट ही स्पेंड्स ओवर देयर वाज द वर्स्ट नाइट ऑफ हिज लाइफ। क्यों? क्योंकि उसके नॉस्ट्रल्स ब्लॉक हो जाते हैं, वो एक हर्बल टी पीता है मगर ही डजंट गेट रिलीफ। उसके बाद वो लेटने की कोशिश करता है बट उसे ब्रेथलेसनेस होती है, ही इज ट्रबलिंग फ्रॉम ब्रेथलेसनेस। वो उठ के बैठ जाता है तो वो ठीक हो जाता है, फिर से लेटता है, फिर ब्रेथलेसनेस होती है। Then he decides that he will not sleep for that particular night because he thinks if he would sleep then definitely he won't be able to get up the next morning. यस सर। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर उसे सेतन जो उसका टैक्सी ड्राइवर है वो डॉक्टर के पास ले जाता है। सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट, डार्चन में सेतन निक को छोड़ के चला जाता है। नाउ निक इज हैविंग प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन with people because Setan was the only person who knows English, and the people of Darchan, they are unfamiliar with the English as a language, and he is having communication troubles over there in Darchan. That's why
Nick, the narrator, is disappointed with Darjan. Got it, बच्चे? Yes. Yes, sir. Okay. Next question. Tut's body was buried with gilded treasures. Give reasons. Sorry. This question has been taken from the discovering of the Tut, the saga. तो क्यों टट की बॉडी को जब कॉफिन में रखा तो उसके साथ सारे गिल्डेड ट्रेजर, खजाने जो थे वो रखे गए? सर क्योंकि क्योंकि सर टूट के जो टाइम में जितने भी रॉयल्स होते थे वो यही बिलीव करते थे कि जब वो मरेंगे तो अपने वो जितने भी ट्रेजर्स है वो उनके साथ सर बरी क्योंकि होंगे। उनके आफ्टर लाइफ होगी डेथ के बाद। वेरी गुड साइकिल एंड वेरी गुड हु गेव द आंसर? वेरी गुड। क्योंकि वो ये सोचते थे जो रॉयल पीपल है व्हेन दे डाई दे टेक ऑल द रिचेस along with them which will help them in their journey after death. Okay, that's why Tut body was buried along with the large quantities of gold. Got it? यस सर। समझ गए Yes, बच्चे? sir. ओके, वेरी गुड। ओके, दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। हम सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज के पेपर में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम? पहले तो मुझे बताओ कि दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम विच चैप्टर? द एलियन प्लैनेट। वेरी गुड। तो द एलियन प्लैनेट। अब मुझे बताओ कि अर्थ के बायोलॉजिकल सिस्टम के प्रिंसिपल कौन कौन से और उनके नाम क्या हैं? नेम द प्रिंसिपल्स ओनली। द फॉरेस्ट, फिशरीज, ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड। Very ये good. ये फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, क्रॉपलैंड्स। ठीक है। अब फिशरीज के लिए नरेटर ने क्या कहा है अपने आर्टिकल में? फिशरीज के लिए एज अ रिजल्ट फिशरीज आर कोलैप्सिंग। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ओके, वी ह्यूमंस वी आर सीकिंग फॉर प्रोटीन्स, है ना, एंड वी आर डूइंग ओवर फिशिंग, राइट? The population is increasing day by day. Due to overpopulation, we are making buildings, we are making construction by compromising our nature. पेड़ कटते हैं ना, पेड़ कटेंगे तभी लैंड खाली होगा, तभी उसके ऊपर घर बनेगा। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन हम स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं एंड वी आर लीडिंग इनटू डिफॉरेस्टेशन। अब क्या होता है बच्चे, जो हमारे ग्रास लैंड्स और क्रॉप लैंड्स हैं, आपको पता है जब फसल लगाई जाती है, जब क्रॉप कल्टीवेशन किया जाता है तो उसमें नेचुरल मैन्योर यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आई वुड रियली वांट टू आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल मैन्योर? तो खाद। द काउ डंग। वेरी गुड, काउ डंग। अब आपको पता है कि रूरल एरिया में स्टिल पीपल आर यूजिंग ड्राई काउ डंग फॉर कुकिंग, और Yes, sir. पॉपुलेशन की डिमांड मीट करने के लिए now insecticides, fertilizer, pesticides are being and other type of chemical are being used. Yes, sir. उससे क्या होता है, उससे सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो रही है, और जितनी भी हमारे ग्रास लैंड्स एंड क्रॉप लैंड हैं ये वेस्ट लैंड और डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो रही है। That has been said in the alien planet. Any problem in this question, बच्चे? नो सर। No, sir. Okay. Now moving to the long answer type question. बच्चे लॉन्ग आंसर टाइप के लिए स्नैपशॉट अच्छे से पढ़ लेना। इट इज़ ए पॉसिबिलिटी कि एक क्वेश्चन स्नैपशॉट से या हॉर्नबिल से आए, बट दोनों क्वेश्चन भी हॉर्नबिल से स्नैपशॉट से आ सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका ड्रामा से आएगा। आई रिकमेंड कि मदर्स डे को अच्छे से रीड करके जाना, क्योंकि 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है हो सकता है उसके दोनों ऑप्शन जो हैं वो मदर डे से हैं और आएंगे, राइट? तो मदर्स डे जो ड्रामा है उसको अच्छे से आपने पढ़ के जाना है। ओके, सो 11th क्वेश्चन, व्हाट इंप्रेशन ऑफ डॉक्टर एंड्रयू मेंशन डू यू फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी बर्थ? डॉक्टर एंड्रयू का इंप्रेशन क्या था इस स्टोरी में, कौन बताएगा? अभिषेक शर्मा। Yes, sir. बच्चे डिस्कस दिस क्वेश्चन। This one,
What impression of Dr. Andrew mentioned do you form on the basis of the story birth? क्या लगता है आपको? अभिषेक नहीं पढ़ा अभी द बर्थ? सर पढ़ा हुआ है. ओके, टेल द आंसर. क्या होगा? ओके, अभिषेक, एंड्रयू कैसा इंसान था? सर एंड्रू एक डॉक्टर था. वेरी गुड. क्या वो डिसीजन मेकर था? यस सर. ही वॉज ए गुड डिसीजन मेकर, राइट? कैसे पता? बिकॉज सर इसने स्टिल बोर्न चाइल्ड में लाइफ. Okay, he was a good decision maker, Andrew, because when he performed the delivery, the situation got very tough because Suzanne was getting in risk and the baby was stillborn. He was in dilemma whom to treat first. He gave the child to the midwife and he focused on Suzanne, injected her injection and took her out of the danger situation, right? He was a dedicated person. कैसे कह सकते हो कि एंड्रयू मेंशन जो थे वो डेडिकेटेड पर्सन थे? He was a dedicated person because he was not listening to the midwife who was telling him to stop performing procedures on the stillborn child as she thought के the child is dead. But Andrew was dedicated and he knows what to do and he made चाइल्ड टू गैस्प. गैस्प क्या होता है? मुंह खोल के सांस लेना, ठीक है? यहाँ ब्रीथ. ओके. थर्ड पॉइंट, ही वॉज हैविंग ए शार्प मेमोरी. हाउ कैन यू से कि ही वॉज हैविंग ए शार्प मेमोरी? एंड्रयू की मेमोरी शार्प क्यों थी? बिकॉज he recalled that same case was observed when he was undergoing his practicing his studies in the college, and he ordered midwife to get a beaker of hot water and cold water. He dipped the child and practiced the same procedure what he had seen during his college time, and he revived the child back. ठीक है? Okay. He was a focused person. कैसे बोल सकते हैं? Yeah, he was a true professional. He was true professional because it was seen in the beginning of the chapter that Dr. Andrew had a fight with his girlfriend Christine, right? While going back home, he saw Joe was waiting for him. Joe told him that today was a day when his wife is about to deliver a baby and they were expecting this baby after 20 years. 20 साल के बाद इस बच्चे को वो expect कर रहे हैं. And Dr. Andrew was in the memories of Christine only, but he kept them aside. He focused on his professional work as a doctor and he treated Suzanne and his child. Baby. समझ गए? Yes. Yes, So sir. this is the impression which is made by Dr. Andrew in the chapter The Birth. Moreover, he was not a bookworm. ये कैसे बोल सकते हो आप? Because he didn't practice anything which was written in book. He was a skilled doctor and he has a strong belief in himself. He was very positive and he did everything practically to get the child back out of death. क्यों ऐसा ही हुआ था? Yes, sir. किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क मी. सक्षम शर्मा, मानव कुमार, प्लीज ओपन द कैमरा. आई विल नॉट रिपीट इट अगेन. बच्चे, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? No. No, sir. Okay. Moving to the or part. The or part says the story is divided into pre-war and post-war times. What hardship do you think the girl underwent during these times? From which chapter this question has been taken, बच्चे? Address. The address. Very good. Right. तो बच्चे, स्टोरी दी एड्रेस की बात करें तो मार्गा मिंको ने 2 टाइम स्पैन्स की बात की है इस चैप्टर में. एक प्री वॉर और एक पोस्ट वॉर.
तो पहले तो मुझे ये बताओ कि जब वॉर होती है तो क्या होता है? लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शंस होती है। Spread of hate. वेरी गुड। डिस्ट्रक्शन होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं। अब इस चीज को रिलेट करो कि मार्गा मिंगो ने प्री वॉर कैसे सफर किया और पोस्ट वॉर कैसे सफर किया एज पर द स्टोरी। हु विल आंसर? अनित्य। Yes, sir. Before the war, the narrator belongs to a very rich family. They had a very valuable things. Very But good. sir, after the war, the narrator lost her mother, and sir, she was alone, living in a small rented house. Very good. Anitya. Yes, sir. And after the war, she wanted to go to the Mrs. Darling house to see the valuable things that belongs to her mother. Very good. Or Sir, when she go to the Mrs. Darling house, she refused to recognize her and does not pay back all the valuable things that belongs to her mother. excellent. उसके बाद बच्चे Sir, and the narrator want to see them again. Then she decided to make a second visit. The second visit, she was allowed to go into the house because that was her Mrs. Darling's daughter. And when the narrator saw all the valuable things that were very recklessly used by the Mrs. Darling's family, then she decided to forget the address and started to start her own life. एक्सीलेंट। ये आपके दो क्वेश्चन के आंसर निकलेंगे। एक निकलेगा कि वाई मार्गा मिंगो वांट टू फॉरगेट द एड्रेस, ठीक है, उसका आंसर भी सेम है। इसमें ये होता है कि बच्चे जब वॉर नहीं हुआ था तो मार्गा मिंगो की अच्छी फैमिली थी, शी वॉज वेरी हैप्पी, दे वर हैविंग देयर ओन हाउस, वो अपनी माँ के साथ रहती थी, दे वर हैविंग देयर ऑल वैल्यूएबल थिंग्स अलॉन्ग विद देम, दे वर लिविंग हैप्पीली, दे वर रिच एंड दे वर लिविंग ए वेरी लैविश लाइफस्टाइल। जब वॉर हुआ उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, उनको जगह छोड़नी पड़ी। दे यूज टू स्लीप इन फेयर के दे कैन अटैक, दे माइट बी अटैक्ड बाय जर्मन एनी टाइम, राइट। ड्यूरिंग वॉर मार्गा मिंगो लॉस्ट हर मदर, ठीक है, दैट वॉज मोस्ट पेनफुल इवेंट फॉर हर। आफ्टर दैट हर फाइनेंशियल स्टेटस चेंज, फ्रॉम रिच शी बिकेम पुअर। Before the war she was having her own house, जैसे अनित्य ने बताया। Now she is living in her rented apartment after the war got over, ठीक है। उसके बाद she visited Mrs. Darling, as Mrs. Darling used to be very familiar in pre-war era, but post-war she is changed. She even don't she was pretending she has recognized Marga Mingo, but she was pretending like she has not recognized her now. She was not allowing her to enter the house. Pre-war all the valuable things were with the Marga Mingo. Post-war the time has changed. Now she went there to pick her valuable back, but when she saw the condition of the valuable, that was not appropriate, and she felt like that case it is not being proper taken care, so she took a final decision of forgetting the address. बच्चे क्लियर है सबको? Yes, sir. कोई डाउट इसमें? No, sir. Okay. Coming to the 12th question. Describe how Mrs. Pearson is treated by her children and husband. How does she set them right? I want an answer from someone. मेरे को बताओ कि मदर्स डे में मिसेस पियर्सन के बच्चे और हस्बैंड उसके साथ किस तरह से बिहेव करते थे, किस तरह से उसे ट्रीट करते थे, और मिसेस पियर्सन ने सबको कैसे सेट किया। Who will answer? Second. Yes, sir. So in this story we find that at home nobody cares about Mrs. Pearson. Very good. Even her husband and her son and daughter does not care for her. They doesn't think of her. They treat her as a servant. Okay. और जब वो सर उसका पति अपने ऑफिस से घर आया, उसको उसको मतलब टी नहीं चाहिए थी, उसने तब भी अपने उससे वाइफ को बोला कि तुमने मेरे से क्यों नहीं पूछा टी बनाने के लिए। ओके। और जो उसकी बेटी थी
सर उसका नेम क्या था? डॉरिस। डॉरिस। डॉरिस सर, डॉरिस सर वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जा रही थी, तो चार्ली उसने स्पेंसर। और उसने अपनी मदर को ऑर्डर किया कि तू उसको आयरन करके दो येलो सिल्क साड़ी। ड्रेस, नॉट और साड़ी, इट वाज ए येलो ड्रेस। यस यस। ओके, और सर साइरल जो था वो थक गया था 8 घंटे काम करके, वेरी गुड। तो वो अपनी मदर को कॉफी पता नहीं टी बनाने के लिए उसने बोला था। बट इसमें से ये तीनों में से किसी ने भी नहीं सोचा मिसेस पियर्सन के बारे में कि वो भी इतना काम करके थकती है। ओके, वेरी गुड। यस सर। सर एवरी फैमिली मेंबर स्पेंड टाइम विद देयर फ्रेंड्स बट नोबडी Cared about, even cares cared, about how very good, poor the Mrs. Pearson feel. very good. And Mrs. Pearson was a very loving Loving a mother. and She simple mother. simple mother. She used to take care and she used to perform every order which are which is being given by her children and Mrs. George Pearson. But she was working tirelessly right from day to night. She was working 24/7, but at the end she was not getting a single appreciation and respect from children and From husband. their family. This was the most unfortunate part of this play. अब उसने कैसे सेट कैसे किया कि शी वॉज वन सिटिंग विद हर नेबर जिसका नाम फिट्जराल्ड था. शी टोल्ड एवरीथिंग टू मिसेस फिट्जराल्ड. फिट्जराल्ड टोल्ड हर कि शी कैन हेल्प हर in setting all the things by doing a personality swap, because Mrs. Fitzgerald was well aware of magic. She has learned that magic from the East. She performs the magic. She does the personality swapping. When personality swapping happens, now Fitzgerald becomes Annie Pearson and Annie Pearson becomes Fitzgerald. Fitzgerald used to live in Annie Pearson's room, Annie Pearson's home. and Annie Pearson goes to Used to Fitzgerald live room. in Fitzgerald home. तो उसके बाद जैसे सारांश सहगल ने बताया कि डोरिस को बोला कि डू योर वर्क, सारल को बोला कि यू मेक वॉट एवर यू वॉन्ट टू मेक. शी वॉज स्मोकिंग, शी वॉज टेकिंग स्टाउट. जॉर्ज पियर्सन आते हैं, जॉर्ज पियर्सन कहते हैं ओके डोंट मेक टी फॉर मी, आई एम गोइंग टू क्लब. वो कहती है आई हैवंट प्रिपेयर्ड टी फॉर यू. तो उसकी ईगो हर्ट हो जाती है. वो कहता है कि व्हाट यू हैवंट प्रिपेयर्ड अ कप ऑफ टी फॉर मी, तुमने चाय नहीं बनाई, राइट? तो वो कहती है कि इफ यू वांट टू ड्रिंक अ कप ऑफ टी यू कैन मेक योर टी एंड ड्रिंक इट. तो वो कहती है कि यू नो व्हाट पीपल कॉल यू एट द क्लब. वो कहते हैं व्हाट पीपल कॉल यू ऑम्पी पॉम्पी पियर्सन. याद है हमने करा था ये. तो वो साइड पे हो जाता है. नाउ व्हाट हैपेंस, दे दिस Fitzgerald comes और सारल कहता है कि the old lady which live next has come. So एनी पियर्सन कहती है, जो असली फिट्जराल्ड है एनी पियर्सन में, अब मैं इसको लिए एनी पियर्सन यूज़ कर रहा हूँ. वो कहती है कि डोंट टॉक टू योर एल्डर्स लाइक दैट. वो अंदर आती है, शी सीज द इन्वायरमेंट. वो कहती है कि नाउ इट्स इनफ, वी हैव टू चेंज दिस पर्सनालिटी. ये पर्सनालिटी चेंज करते हैं. वो वापस चले जाती है. नाउ एवरीथिंग हैज़ बीन सेट. जो सब पर है वो बच्चे बनाते हैं. जॉर्ज पियर्सन, एनी पियर्सन उसके बच्चे जो हैं साथ में सब पर लेते हैं और रम्मी खेलते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं. गॉट इट? Yes sir. ओके. सो नरेट द स्टोरी ऑफ द प्ले मदर्स डे. ये तो मैंने आपको समरी बताई दी. Yes, तो sir. बोथ द क्वेश्चन हैज बीन कवर्ड. बच्चे मदर्स डे में कोई प्रॉब्लम है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा बच्चे. मदर्स डे को अच्छे से पढ़ लेना. If there would be anything, I have discussed the summary with you. Just go through the deeper understanding about the chapter. If there would be anything, then please connect to me. I will be definitely helping you out to solve your doubts. बच्चे सेक्शन सी में किसी को प्रॉब्लम? No, sir. We are moving to section B. सर थीम का क्या मतलब होता है? थीम का मतलब हो गया बच्चे के कौन से क्वेश्चन का कह रहे हो? थीम मदर डे की पूरी थीम, मतलब मदर डे सेंटर आइडिया किस पे बेस्ड है? वो बेस है उसका जो थीम है वो है पोजीशन ऑफ फीमेल्स इन द सोसाइटी. इट्स ए मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी. गॉट इट? सर.
तो women are not given equal rights and they are treated badly by their children, by their husband, and moreover male is the person who is being dominating the woman in the society. This is the theme of Mother's Day. Got it? Yes. Yes, sir. Okay. So moving to section B बच्चे, सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है या तो वो नोटिस होगा और पोस्टर होगा, या पोस्टर होगा या और में एडवर्टीजमेंट होगा, या एडवर्टीजमेंट होगा या और में नोटिस होगा. सो डिस्कसिंग द फर्स्ट क्वेश्चन सेज यू आर द कल्चर सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल. आप अपने स्कूल के क्या हो? कल्चर सेक्रेटरी. इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मार्क करते जाना. योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए कल्चर इवनिंग. क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है? ए कल्चर इवनिंग इन द स्कूल टू कलेक्ट फंड्स फ्रॉम स्लम चिल्ड्रन. तो बच्चे यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय स्लम चिल्ड्रन? स्लम क्या होता है? सर जो झुग्गी वगैरह बोलती है. वेरी गुड सर लो बच्चे, आउटस्कर्ट्स नहीं हरसिमरन, जो बच्चे झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं उन्हें स्लम चिल्ड्रन कहते हैं. झुग्गी झोंपड़ियों को क्या कहते हैं? स्लम कहते हैं. ठीक है सर, वही मतलब जो स्लम एरियाज में रहते हैं बच्चे. वेरी गुड बच्चे, जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं. ठीक है, तो आपको एक प्रिपेयर करना है पोस्टर जो कि आप डिस्प्ले करेंगे डिफरेंट एरियाज ऑफ सिटी में, जिसका एंट्री जो है, एंट्री किसका है? कल्चरल इवनिंग का जो एंट्री है वो नॉमिनल है. तो बच्चे पोस्टर के कुछ रूल्स मैं आपको बताऊंगा. एक तो पोस्टर बॉक्स में आता है, दूसरा इसमें सिंपल लैंग्वेज यूज होती है. ठीक है, आपका पोस्टर जो है वो डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं आता. जैसे आप नोटिस लिखते हो ना, वैसा नहीं लिखते. ये पॉइंट्स में आता है. ये अट्रैक्टिव होना चाहिए. ठीक है, इसमें आप क्लिप आर्ट भी बना सकते हैं, यानी आप ड्राइंग भी बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को डिस्कस करें तो इशूइंग अथॉरिटी कौन है? कल्चर सोसाइटी, दीवानी स्कूल. क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम? कल्चर इवनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि हम स्लम के लिए, स्लम चिल्ड्रंस के लिए फंड रेज कर रहे हैं. अब ये जो इवनिंग होने वाली है, कब होने वाली है? ये 2 दिसंबर को होने वाली है, शाम को 6 बजे. इसमें कौन आने वाला है? इसमें ऑनरेबल मनोज सिन्हा जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो एज ए चीफ गेस्ट आने वाले हैं. इस इवनिंग की अट्रैक्शंस क्या हैं? एक कल्चर प्रोग्राम होगा स्कूल चिल्ड्रन द्वारा, एक डोगरी डांस होगा, डोगरी पोइम रेसिटेशन होगी, एरोबिक होगी, और वेन्यू क्या है? अभिनव थिएटर में. मगर आपकी एंट्री कैसी होगी? मनी से. यू नीड टू बाय टिकट जो कि नॉमिनल है. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो आप 50-100 रुपए नहीं लिख सकते. स्टूडेंट का 10 रुपए नॉमिनल, अडल्ट का 20 रुपीज. एंड यू आर द कल्चर सेक्रेटरी, तो अपना नाम लिख दीजिए ऊपर. इज इट क्लियर? यस सर. पोस्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चे हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं लिखना. जिस तरह से हम लिखते हैं ना, दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल इवनिंग ऑन, ये नोटिस है. पोस्टर जो है वो पॉइंट्स में आएगा. फिर इसका फॉर्मेट बता दो. बेटा पोस्टर का कोई फॉर्मेट ही नहीं है. पोस्टर में सिर्फ जिन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. मैं फिर से रिपीट करता हूं. एक तो बॉक्स में आएगा, सिंपल लैंग्वेज यूज होगी, डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं आएगा, सब कुछ पॉइंट में होगा, अट्रैक्टिव होना चाहिए, और आप इसमें ड्राइंग बना सकते हो. मगर ड्राइंग हैज टू बी मेड विद द हेल्प ऑफ पेन. पेंसिल इज प्रोहिबिटेड. यू आर नॉट अलाउड टू यूज pencil in my English paper. It is a guideline which has been given by JK Board. आपको बॉक्सेस भी बनाने हैं तो स्केल और पेन से बनाने हैं. Is it clear? यस सर. यस सर. Moving to next question. The next question says your younger sister is a student of 10th class. हमें इंफॉर्मेशन मिल गया. आपकी छोटी बहन जो है वो 10th क्लास में पढ़ रही है. ठीक है. She broke her foot accidentally. उसने अपना पाँव तोड़ दिया एक्सीडेंटली. Hence cannot go to school. अब ये स्कूल नहीं जा पा रही 1 महीने के लिए. ठीक है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट. आपको एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करनी है लोकल न्यूज़पेपर के लिए फॉर ए टीचर. आप एक टीचर ढूंढ रहे हैं जो पढ़ाएगा आपकी बहन को साइंस और मैथ. कहाँ पे? घर पे. तो जो घर पे टीचर पढ़ाता है उसको क्या कहते हैं बच्चे? होम ट्यूटर. होम ट्यूटर. तो आपको एक होम ट्यूटर चाहिए
सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे, इसका हेडिंग डालेंगे वांटेड मैथ एंड साइंस होम ट्यूटर। ठीक है, ओके। यहां पे मैं दो बातें आपको समझाता हूं। बच्चे, जब कंपनी जॉब क्रिएट करती है, जब कंपनी जॉब क्रिएट करती है तो उसकी हेडिंग क्या आती है? सिचुएशन वांटेड। नहीं, जब कंपनी जॉब क्रिएट करती है तो उसकी हेडिंग आती है सिचुएशन वेकेंट। जब हम अपनी एडवर्टीजमेंट देते हैं कि हमें नौकरी चाहिए तो उसकी हेडिंग क्या आती है? The situation wanted. वेरी गुड। यहां पे भी ट्यूटर किसको चाहिए? आपको चाहिए, तो हेडिंग क्या आई? वांटेड। वांटेड मैथ एंड साइंस होम ट्यूटर। क्लियर है बच्चे? यस सर। ओके, इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? वांटेड हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस पीजीटी who can teach science and math to a girl studying in class 10th. All the information has been given in the question itself. Tuition fee is negotiable for the deserving and experienced candidate. ठीक है, for deserving and experienced candidate apply with detailed biodata within a week. आपने अपना नाम दिया? Excuse me, sir. Yes बच्चे? So we don't have to give the personal information of younger sister given above. That her foot broke. Why to give? Yes, sir. You can give okay, we are looking for a wanted highly qualified and experienced PGT who can teach science and math to a girl who accidentally broke her foot and won't be able to go to school for 1 month Yes, sir. and studying in class 10th. You can mention it. ठीक है? Tuition fee is negotiable for the deserving and experienced candidate. Apply with detailed biodata within a week too. Your name, your address. आप नाम एड्रेस दें या ना दें, आपको कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस जरूर देना है एडवर्टीजमेंट में। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एडवर्टीजमेंट ओनली। इज इट क्लियर? Yes, sir. एनी डाउट? No. No. Okay. Now coming to the question number 4th of section B. ये कह रहा है द रोड लीडिंग टू योर स्कूल। आपके स्कूल की तरफ जो रोड जाती है वो बहुत कंजस्टेड है और उसमें पॉट होल्स हैं। पॉट होल्स क्या होते हैं? गड्ढे। बिल्कुल। Good. स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो सुबह जाते हैं वो अक्सर जाम में फंस जाते हैं। ठीक है, आपको लेटर लिखना है टू दी एडिटर। ठीक है, लीडिंग न्यूज़पेपर का नाम दिया है? सक्षम, न्यूज़पेपर का नाम दिया है? लोकल न्यूज़पेपर सिर्फ। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू दिस प्रॉब्लम रिक्वेस्टिंग फॉर इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ रोड। तो ये कौन सी लेटर है? ये लेटर है टू द एडिटर। तो सबसे पहले क्या आएगा? सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस नहीं दिया है, राइट? इमेजिनरी एड्रेस। लीव अ लाइन, डेट इसी फॉर्मेट में आएगी। लीव अ लाइन, रिसीवर का एड्रेस, और यहां पे पिन कोड आएगा। रिसीवर का एड्रेस क्या है? दी एडिटर। न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया है, राइट एन इमेजिनरी नेम ऑफ न्यूज़पेपर, जम्मू, पिन कोड, लीव अ लाइन, स्टार्ट विद दी सब्जेक्ट और सर से स्टार्ट करो। अब बच्चे एक चीज मैंने देखी है, जब आप लेटर टू द एडिटर यूज करते हो, इसको लिखते हो, तो आप एक लाइन यूज करते हो, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर। बच्चे मैंने कुछ बच्चों के पेपर चेक किए, उन्होंने बिजनेस लेटर में भी ये लाइन लिखी हुई है। तो बच्चे जब भी एडिटर को लिखना होगा तो ही आप इस लाइन को यूज करेंगे, अन्यथा यानी else you won't be using this line in any of the letter, because this line is specifically designed for the letter which has to be written to the editor only. समझ गए? Through the column of your esteemed newspaper, I would like to draw attention of the government to the problem which is being faced by every student and parent oftenly. That is, every time they move from the road which is leading to our school, we
often get stuck in a traffic jam because it is too congested and it is full of potholes. सब कुछ यहाँ पे है, बस आपको सेंटेंस बनाने हैं. बच्चे समझ में आ रहे हैं? Yes, sir. ओके जब बॉडी कंप्लीट करोगे यू हैव टू राइट थैंक यू. बहुत सारे लोग इसको मिस कर रहे हैं, प्लीज डोंट मिस इट. लीव अ लाइन, योर्स फेथफुली एंड जो. अगर नाम क्वेश्चन में दिया है तो क्वेश्चन वाला नाम आएगा, अगर नाम क्वेश्चन में नहीं दिया है तो इमेजिनरी नाम आएगा. मगर आप अपना नाम, अपने स्कूल का नाम नहीं लिखेंगे एक्सेप्ट द कवर पेज. जो आपका कवर पेज समझते हो ना, कौन सा पेज है? होम पेज. Yes, sir, sir. फ्रंट पेज. वहां पे अपना ही नाम लिखना है, अपनी इंफॉर्मेशन देनी है. पेपर के अंदर अपना नाम नहीं लिखना है, ना ही स्कूल का नाम लिखना है. अनित्य स्माइलिंग, राइट? आर यू गेटिंग इट एवरीवन? Yes, sir. बाद में ऐसे नहीं बोलना कि सर आपने तो कहा था कि इमेजिनरी नेम लिखना है. कवर पेज में अपना नाम लिखना है. बच्चे आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, कवर पेज में अपना नाम लिखना है. पेपर में यू नॉट अलाउड टू यूज योर पर्सनल नेम एंड द नेम ऑफ द स्कूल. इज इट क्लियर Yes, sir. यस. Yes, sir. ओके. लेटर का फॉर्मेट क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके. मूविंग टू द और पार्ट. और पार्ट में देयर इज अ क्वेश्चन. सक्षम, यू आस्क दिस क्वेश्चन टू मी. इसको ध्यान से समझना. ओके. Yes, sir. यू आर द लाइब्रेरियन ऑफ ए स्कूल, ऑफ योर स्कूल. आप अपने स्कूल के लाइब्रेरियन हो. स्कूल का नाम नहीं दिया है, इसका मतलब इमेजिनरी नेम आएगा. ठीक है. एज डिजायर्ड एंड ऑर्डर्ड बाय प्रिंसिपल, जैसा कि प्रिंसिपल की इच्छा है और उसने ऑर्डर किया है. राइट अ लेटर टू मेसर्स यूनिक बुक शॉप. आपको मेसर यूनिक बुक शॉप, ये बुक का नाम, शॉप का नाम है, उनको आपको लेटर लिखना है. क्यों लिखना है? ऑर्डरिंग फॉर द सप्लाई. आप ऑर्डर करेंगे इंग्लिश की बुक्स, फिजिक्स की बुक्स, केमिस्ट्री की बुक्स, जो कि लेटेस्टली बोस ने, जेके बोर्ड ने इंट्रोड्यूस किए. और आप किस लिए इसको ऑर्डर कर रहे हो? अपने स्कूल की लाइब्रेरी के लिए. दिस इज ए बिजनेस लेटर इन विच वी आर प्लेसिंग एन ऑर्डर. क्लियर है बच्चे? Yes, sir. अब इसमें डेजिग्नेशन है द लाइब्रेरियन. ठीक है, तो हमने डेजिग्नेशन लिखा, नाम नहीं लिखेंगे, ओनली डेजिग्नेशन. ठीक है. स्कूल का नाम कठुआ में है, कठुआ का पिन कोड. लीव अ लाइन, हमारा सेंडर एड्रेस कंप्लीट हो गया. आफ्टर राइटिंग डेट इन दिस फॉर्मेट, लीव अ लाइन. आप इस बुक शॉप में किसको लिख रहे हो? सेल्स मैनेजर को. ठीक है, आपने सेल्स मैनेजर लिखा. मैसेज यूनिक बुक शॉप लिखा. जम्मू, जम्मू का पिन कोड. लीव अ लाइन. सब्जेक्ट क्या है? ऑर्डरिंग, ऑर्डर फॉर बुक्स. जब भी आप एक बुक को ऑर्डर करते हो या कोई आइटम ऑर्डर करते हो तो आप हमेशा इस लाइन को लिख सकते हो. आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग बुक्स फॉर आवर स्कूल लाइब्रेरी. अब बच्चे लेटर टू एडिटर आएगा तो ये लाइन मत लिखना. और अगर लेटर आएगी कि ऑर्डर आपने प्लेस रखना है तो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर मत लिखना, क्योंकि ये दोनों अलग लेटर्स हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना. ठीक है बच्चे? आप जब ऑर्डरिंग के लिए लेटर लिखते हो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड ऑन द आइटम लिस्ट. आइटम लिस्ट क्यों लिखते हैं? आइटम लिस्ट बताती है कि आप क्या क्या ऑर्डर कर रहे हो. आपने जो आइटम है एज पर द क्वेश्चन लिखी है, राइट? अब ऑर्डरिंग लेटर में एक और चीज का ध्यान आपने रखना है. आप एक तो डिस्काउंट मांगेंगे, दूसरा मोड ऑफ पेमेंट डिस्कस करेंगे. ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी. और एक और चीज आप माइंड में रखेंगे, आप इसमें स्पेसिफाई करेंगे कि अगर आपको बुक जो है वो डैमेज मिलती हैं या फॉल्टी मिलती हैं, then the whole parcel would be returned without making any payment against it. और इसके अगेंस्ट आप कोई पेमेंट भी नहीं करोगे. बॉडी खत्म होगी, लाइन छोड़ेंगे. थैंक यू, योर्स फेथफुली AK लाइब्रेरियन. गॉट इट? Yes, sir. बच्चे किसी को कोई प्रॉब्लम लेटर में? No, sir. मानव कुमार, मानव बच्चे आपको कोई प्रॉब्लम? ओके. अथर बच्चे कोई दिक्कत है तो प्लीज आस्क मी. अथर बेटा क्लियर है? Yes, sir. ओके. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन. राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन बिकमिंग द कैप्टन ऑफ द स्कूल क्रिकेट टीम. आप एक ईमेल लिखेंगे. ईमेल आपको जब भी आएगा
पर्सनल आएगा और ये 100% आएगा, ठीक है। एज यू नो इट इज़ द पार्ट ऑफ दिस सिलेबस विच हैज़ बिन गिवन बाय जेके बोर्ड ओनली। तो आप अपने एक फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आप उससे कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, वो स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन बन गया। आपको कैसे पता लगा कि कैप्टन बन गया? क्योंकि आपने नोटिस बोर्ड में देखा जिस पे नोटिस लगा था, जो कि प्रिंसिपल ऑफिस से इशू हुआ था। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चे? यस सर। ओके। अब जब भी नोटिस बनाएंगे, नोटिस का प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे। आप क्या कर रहे हैं? आप फ्रॉम लिख रहे हैं, डेट लिख रहे हैं, टू लिख रहे हैं, सीसी लिख रहे हैं, सब्जेक्ट लिख रहे हैं, मगर आप इन लाइंस को क्लोज नहीं कर रहे। बेटा ये सेम लाइंस बनेगी, ये सेम लाइंस में क्लोजिंग होगी। फ्रॉम एफ डी टी सी एस और टाइम, ठीक है। फ्रॉम डेट टू सीसी सब्जेक्ट। डेट इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, सब्जेक्ट में लिखेंगे कंग्रेचुलेशन ऑन बिकमिंग कैप्टन। पर्सनल ईमेल है, हमेशा आप डियर से स्टार्ट करेंगे, डियर रजत, ठीक है। और इसको एंड करेंगे विद रिगार्ड्स और नाम। जो नाम क्वेश्चन में होगा यू कैन यूज दैट। अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया होगा तो यू हैव टू राइट ए इमेजिनरी नेम, ठीक है बच्चे। आपको इमेजिनरी नेम यूज करना है। तो दिस इज द फॉर्मेट। आई थिंक फॉर्मेट हैज बीन क्लियर टू यू। यस सर। ये लास्ट पेपर में भी मैंने सेम क्वेश्चन आया था ये शायद से, यस सर। if I'm not wrong. Okay. Okay. Moving to next question. The next question is incidents of crime against women. As a student editor, अब यहाँ पे देखो क्या दिया है। आप क्या हो? स्टूडेंट एडिटर। कहाँ के? स्कूल मैगजीन के। आपको आर्टिकल लिखना है, ठीक है। क्लियर हो गया है? ये 8 नंबर का क्वेश्चन है और आपको आर्टिकल लिखना है। हाउ कैन यूथ हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट दिस इवल। तो सबसे पहले हेडिंग जो कि सेंटर में आएगी, हेडिंग यहीं से ले लो, ठीक है। बायलाइन आनंद, आनंद की डेजिग्नेशन दी है। आनंद क्या है? एडिटर ऑफ स्कूल मैगजीन। तो इसको कॉपी पेस्ट कर लो। लीव अ लाइन एंड स्टार्ट विद योर बॉडी। 200 to 250 वर्ड्स। क्लियर है बच्चे? यस सर। सी क्वेश्चन को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन होगी वही यूज करनी है पहले, ठीक है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज यू आर द प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट। प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होता है बच्चे? कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब होता है रिपोर्टर। वेरी गुड। कहां के रिपोर्टर हो आप? आप एबीसी न्यूज वर्ल्ड के रिपोर्टर हो। देयर वॉज ए इंसिडेंट ऑफ थेफ्ट इन योर लोकेलिटी। आपके एरिया में चोरी हो गई, जिसमें बहुत सारा कैश जो था और सोना जो था वो किसी ने चुरा लिया। आपको रिपोर्ट लिखनी है, जिसमें किसके लिए? न्यूज़पेपर के लिए। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर रिपोर्ट का फॉर्मेट आएगा। सबसे पहले हेडिंग सेंटर में आएगी, एक लाइन छोड़ के बाय लाइन, इमेजिनरी नेम, नाम नहीं दिया, राम आ गया। आपकी डेजिग्नेशन दी हुई है स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट या स्टाफ रिपोर्टर। न्यूज़पेपर का नाम भी दिया है, यहाँ से कॉपी पेस्ट करो न्यूज़पेपर का नाम। राम की सीध में जगह का नाम आ जाएगा जम्मू, और रिपोर्टर की सीध में डेट आ जाएगी। एंड स्टार्ट विद योर रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग क्या है? ये आपकी पास्ट टेंस में ही होती है। मुझे एक चीज बताओ, आज जो हुआ है वो न्यूज़पेपर में पढ़ा आपने? नो सर। क्यों? नो सर। तो वो कल है। वेरी गुड, क्योंकि वो कल आएगा। तो कल जब आएगा तो वो पास्ट हो गया होगा। इसे न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग जब भी होती है ये पास्ट टेंस में होती है। बच्चे कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम न्यूज़पेपर रिपोर्ट में? नो। ओके बच्चे, अब बात करेंगे एडिटिंग की। एडिटिंग को कैसे करना है मैंने आपके सामने पूरा सॉल्व किया है। आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। आपको ये पैराग्राफ दोबारा रीराइट करना है। जो इनकरेक्ट वर्ड्स थे, सी का 100 था, ठीक है। इनकरेक्ट वर्ड्स को रिप्लेस करना है करेक्ट वर्ड्स के साथ और इसको अंडरलाइन करता जाना है। और अगर टाइम बचा तो इस तरह से जैसे आप इनकरेक्ट करेक्ट बनाते हो ये भी बना देना। मगर दिस ये बनाना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि पैराग्राफ को रीराइट करना, इनकरेक्ट वर्ड को करेक्ट वर्ड के साथ रिप्लेस करना और करेक्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करना।
This is the way you will be answering your editing question. बच्चे समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? कल के एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए. I don't want you people to make mistakes. Is it clear? Yes, sir. Okay. Section B is over. Now coming to section A. बच्चे सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन आएंगे. ईच क्वेश्चन विल बी कंप्राइजिंग ऑफ 10 मार्क्स. पहला नोट बनाना. अब नोट मेकिंग में क्या है? नोट मेकिंग में यू हैव टू राइट दी हेडिंग. हेडिंग दे दी आपने, उसके बाद सब पॉइंट. ओके. अब कुछ पेपर मैंने देखे बच्चे, अगर आपको इस वाले फॉर्मेट में प्रॉब्लम आ रही है, रुको मैं बताता हूं. इसमें आपकी सब हेडिंग आ गई. सब हेडिंग 1, ये सब पॉइंट 1, ये सब पॉइंट 2, ये सब पॉइंट 3 और ये सब पॉइंट 4. दिस फॉर्मेट इज ऑल्सो राइट. अगर आपको इसमें मुश्किल आ रही है तो आप क्या कर सकते हो? आपने सब हेडिंग में लिखा 1, सब पॉइंट 1 ए, सब पॉइंट 2 बी, सब पॉइंट 3 सी, सब पॉइंट 4 डी. फिर सब हेडिंग 2 आ रहे डाल दो एज 2. फिर सब हेडिंग सब पॉइंट 1 सब हेडिंग 2 का ए बी सी डी. मगर जो आप एब्रीवेशन बॉक्स में मेंशन करोगे उन्हें आप यूज करोगे. बच्चे आप अंडरलाइन नहीं कर रहे हो, उसे अंडरलाइन करना मैंडेटरी है. इज इट क्लियर? Yes. Yes. एवरीवन, आई वांट ए कलेक्टिव आंसर फ्रॉम एवरीवन. बच्चे समरी होएगा. समरी अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले नोट मेकिंग को समझो. नोट मेकिंग में कोई दिक्कत है अथर्व? सर इसमें एब्रीविएशन यूज करना है सर नोट्स में. बेटा एब्रीवेशन नोट्स में ही यूज होता है, समरी में यूज नहीं होता है. समरी में क्यों यूज होगा? नोट मेकिंग का मतलब क्या होता है? नोट्स बनाना. तो एब्रीवेशन कहां यूज करोगे? नोट मेकिंग में यूज करोगे. ठीक है बच्चे? जैसे मैंने ये एब्रीवेशन लिखा रेवेन्यू का, ठीक है, तो मैंने ये नोट मेकिंग में यूज किया. यहां पे इसको अंडरलाइन किया. ठीक है? क्लियर है बच्चे? यस सर. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बच्चे. सर ये की टू ऑब्जर्वेशन वाला जो आपने बॉक्स बनाया है ना सर, इसमें जैसे आपने डायरेक्ट लिखा हुआ की टू एब्रीविएशन और नीचे एब्रीविएशन डाल दिया, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि हमने वो लिखना है वर्ड्स और एब्रीविएशन? बेटा बेटर है कि मेंशन कर दो वर्ड्स और एब्रीविएशन. और सर यहाँ पे नंबरिंग मेंशन करनी है ना इनके साथ? बेटा बिल्कुल करनी है. मिनिमम 5 एब्रीविएशंस आप लिखेंगे. ठीक है? इनको यूज करेंगे नोट में. यूज एब्रीविएशन इन नोट्स. ठीक है? मिनिमम 5 सब पॉइंट सब हेडिंग होनी चाहिए, सब हेडिंग, और उनके मिनिमम 5 सब पॉइंट्स होने चाहिए. ठीक है? क्लियर है बच्चे? Yes, sir. समरी में एब्रीवेशन यूज नहीं होगी. समरी कैसे करनी है मैं बताता हूं. समरी हैज टू बी डन इन ए सिंगल शीट. ये सिंगल शीट में करेंगे, सिंगल पैराग्राफ में 80 वर्ड्स की होनी चाहिए और प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए. समरी का टाइटल देंगे. समरी का जो टाइटल होगा वो आपके नोट मेकिंग के टाइटल से अलग होगा. वो दोनों सेम नहीं होने चाहिए. नोट मेकिंग टाइटल क्या है? प्रोस्पेक्टस ऑफ टूरिज्म. क्या है? Prospectus ऑफ टूरिज्म. और समरी का प्रोस्पेक्टस का मीनिंग क्या होता है? प्रोस्पेक्टस होते हैं उसके आगे के अपॉर्चुनिटीज, उसके बेनिफिट्स. प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं? जैसे कॉमर्स के प्रोस्पेक्ट क्या हैं? कॉमर्स के बेनिफिट्स क्या हैं? आप सीए कर सकते हो, आप सीएस कर सकते हो, राइट? तो प्रोस्पेक्ट मतलब उसके बेनिफिट्स. और यहां पे हमने इसकी हेडिंग चेंज कर दी, टूरिज्म द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडस्ट्री. सिंगल शीट में होना चाहिए समरी, सिंगल पैराग्राफ में होना चाहिए समरी, मिनिमम 80 वर्ड्स का होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, और समरी का टाइटल भी देंगे.
नोड मेकिंग का भी टाइटल देना है और समरी का भी टाइटल देना है. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. अब बताओ, एनी डाउट बच्चे? नो सर. पक्का? Yes, sir. Okay. So tomorrow I want to see improvements in everyone's answer sheet. Thank you and have a nice day. ओके, थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you.